अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 237 अपनी बुक का ओपन करें। टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली इसमें बेटे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स की जो रीडिंग है, जो कार्डिक इम्पल्स को रिकॉर्ड कर रही है, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। और सारा ये जो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी, आपने अक्सर वर्ड सुना होगा ईसीजी। ठीक है ना, एक टेस्ट है हार्ट से रिलेटेड, अक्सर पेशेंट्स को डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। बुक का पेज नंबर 237 आपका है। टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। The recording of electrical potential generated by the current of cardiac impulses is known as electrocardiogram ECG. When cardiac impulse passes over the surface of heart, a minute electrical current is generated. This current spread into the tissue surrounding heart. This minute electrical current also travel to the surface of body. In ECG, the electrical potential generated by this current are measured and recorded. For this purpose, electrodes are placed on skin on the opposite side of heart. The electrodes are attached to a machine called electrocardiograph that records electrical potential generated by this current. ECG help to diagnose the abnormalities in conduction system of heart. ECG shows the following waves of electrical impulses produced as specific events of cardiac cycle. Number 1, P wave. It shows beginning of arterial depolarization initiated by SA node. It causes arterial contraction. Irregular or absent P waves may indicate arrhythmia, lack of rhythmicity. PR segment. It shows the completion of arterial depolarization. It is usually 0.12 to 0.20 second. A prolonged PR indicate a first degree heart block. QRS. It shows the beginning of depolarization of ventricles. Arterial repolarization also occurred during this phase. Abnormalities in the QRS complex may indicate bundle branch block, ventricular uh, tachycardia, faster rate of contraction, or other ventricle abnormalities. This is tachycardia. ST segment. It shows the completion of depolarization of ventricles. It can be depressed in ischemia, decreased flow of blood and oxygen to heart muscles, and elevated in myocardial infarction. This segment ordinarily lasts about 0.08 second. T wave. It represents the beginning of repolarization of ventricles. T wave abnormalities may indicate electrolyte disturbance. The hyperacute T wave show the earliest finding of acute myocardial infarction. QT interval. The QT interval is from the beginning of the QRS complex to the end of T wave. A normal QT interval is usually about 0.40 second. टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था जो मैंने भी रीड किया बेटे, लेकिन इजी है। हमने क्या पढ़ा, हमने जो टॉपिक अभी जिसकी मैंने रीडिंग की है, डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, या ग्राम भी कह सकते हैं, या आपका ग्राम भी हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ग्राम के बारे में आपको बताती हूँ, दैन ग्राफ भी आएगा बेटे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या चीज़ होती है? ये एक रिकॉर्डिंग है। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किस चीज़ से प्रोड्यूस होते हैं? बाय द करंट ऑफ कार्डिक इम्पल्सेस। कार्डिक यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो इम्पल्सेस हैं, हमने अभी इम्पल्स आपको लास्ट टॉपिक में मैंने पढ़ाया था ना कि इम्पल्स जनरेट होती है, तो उसी इम्पल्स से एक करंट जनरेट होगी और उसकी रिकॉर्डिंग जो है, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो रिकॉर्डिंग होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड बाय द करंट ऑफ कार्डिक इम्पल्सेस इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
और इसकी जो एब्रीवेशन है वो क्या है, ECG। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा ECG। जब भी कोई हार्ट में नॉर्मेलिटी होती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको कि आप अपने हार्ट की क्या करवाएं, ECG करवाएं। तो वो ECG बेसिकली यही चीज़ है, क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक टेस्ट भी है हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसको चेक करने के लिए कि हार्ट जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। जब कार्डिक इम्पल्स बेटे हार्ट की सरफेस पे से गुजरती है तो एक माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो जनरेट होता है, बहुत थोड़ा सारा, बहुत लाइट, बहुत थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है। और ये करंट जो है पूरा जो हार्ट का टिश्यू होता है उसमें जो है, जो वो हार्ट का टिश्यू जिसने हार्ट को सराउंड किया हो जाता है उसमें ये करंट जो है स्प्रेड हो जाता है। और ये जो थोड़ा सा माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट होता है ये हमारी पूरी जो बॉडी की सरफेस है उसमें से भी जो है ट्रैवल होता है। ECG जब की जाती है तो यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो इस करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, आपको मैंने क्या कहा कि माइन्यूट सा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये करंट पूरी बॉडी के साथ जो है वो क्या करता है, पूरी बॉडी की सरफेस पर ट्रैवल करता है। और इस करंट की वजह से क्या चीज़ जनरेट होती है, क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या किया जाता है बेटे, टेस्ट कर, इसको मेजर करते हैं और इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को रिकॉर्ड करते हैं। इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है और जो इसकी मेजरमेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर हो गया। और इस टेस्ट, ये मतलब टेस्ट किया कैसे जाता है, क्या इसमें क्या होता है, आपने अक्सर आपके घर में कोई एल्डर्स हों या इवन आप छोटी यंग एज में भी आपकी ECG जो है हो सकती है, शायद कुछ बच्चों की हुई हो या घर में किसी पर्सन की हुई हो, तो आपको आइडिया होगा कि इस टेस्ट में क्या होता है कि जो स्किन है ऑपोजिट साइड ऑफ हार्ट के ऑपोजिट साइड पे जो स्किन होती है वहाँ पे छोटे छोटे से इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को एक मशीन के साथ जो है वो अटैच कर दिया जाता है। उस मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ पे ग्राम वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या मैंने वर्ड यूज़ किया कि उन इलेक्ट्रोड्स को एक मशीन के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया जाता है। उस मशीन को, उस ऑपरेटस को, उस जो जिसके साथ ये इलेक्ट्रोड हम लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मेन पर्पस क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी कि करंट की वजह से जो जनरेट होता है उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को ये मशीन क्या करती है, रिकॉर्ड कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक पूरा ग्राफ बन जाता है, एक पेपर जो है उस मशीन आपका प्रिंटर में से निकलेगा, उसके ऊपर पूरा एक ग्राफ बना होगा, ठीक है। तो ये जो ECG होती है बेटे, इससे हेल्प मिलती है कि अगर हार्ट की जो पूरा कंडक्शन उसका सिस्टम है, हार्ट एक कंडक्शन सिस्टम है ना, ब्लड आ रहा है ब्लड जा रहा है, जो पूरा एक कंडक्शन सिस्टम है, अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, ठीक है, तो वो इस टेस्ट से जो है ईजिली जो है वो चेक की जा सकती है। क्लियर हो गया। दोबारा मेन पॉइंट्स इसके मैं बता दूं कि कार्डिक, मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स जो के कार्डिक इम्पल्स के करंट की वजह से जनरेट होते हैं, उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स की रिकॉर्डिंग को क्या कहा जाता है, डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के बिल्कुल स्टार्ट में दी हुई है, द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड बाय द करंट ऑफ कार्डिक इम्पल्स इज नोन एज ECG। ठीक है, यही डेफिनेशन आपने याद करनी है। और सिंपली मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि जब हमने लास्ट में पढ़ा था, पिछले अपने लेक्चर्स में हम पढ़ के आए थे कि यहाँ पे क्या चीज़ जनरेट होगी, जब पूरा हमने सिस्टम पढ़ा था तो मैंने कहा था यहाँ पे कार्डिक इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है। तो जब कार्डिक इम्पल्स बेटे हार्ट की सरफेस के ऊपर से पास करती है तो माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो वो टिश्यू जिन्होंने हार्ट को सराउंड किया होता है ना, उसके इर्द गिर्द जो है उस टिश्यू में जो है ये स्प्रेड करता है करंट। और ये माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट जो है ये हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर क्या करता है, ट्रैवल करता है। जब ECG टेस्ट किया जाता है तो इस करंट की वजह से क्या चीज़ जनरेट होती है, क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, इस करंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर क्या कर लिया जाता है बेटे, रिकॉर्ड कर लिया जाता है और मेजर कर लिया जाता है। और उस टेस्ट को जिससे ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
ईसीजी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। बेसिकली ये टेस्ट होता कैसे है कि बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से इलेक्ट्रोड जो हैं वो लगाए जाते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ हार्ट की ऑपोजिट साइड पे, और इनको ये जो इलेक्ट्रोड्स बॉडी के साथ प्लेस किए जाते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को एक तरफ तो ये बॉडी के साथ अटैच कर दिए जाते हैं बॉडी की सरफेस के ऊपर, दूसरी साइड से ये एक मशीन के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और फिर जब और ये मशीन क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो जनरेट होता है करंट की वजह से उसको ये रिकॉर्ड करती है, और आपको जो है एक ग्राफ जो है वो नज़र आता है, ठीक है। उस ग्राफ का प्रिंट भी ले लिया जाता है, और इस ग्राफ से क्या हमें हेल्प मिलती है, डॉक्टर्स को क्या हेल्प मिलती है कि ईसीजी जो है उससे हेल्प मिलती है एबनॉर्मेलिटीज़ जो हार्ट के अंदर हो रही हैं उनको डायग्नोज करने में। जो है जितना भी हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो तो वो इजीली ईसीजी रिपोर्ट से जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। क्लियर हो गया। फिर आगे हमने जो टॉपिक रीडिंग किया मैंने कि ईसी जो भी आपको बताया कि ईसीजी जो है बेटे उसमें डिफरेंट टाइप की वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है एट स्पेसिफिक इवेंट जो है वो डिफरेंट टाइप की वेव जो है वो जनरेट करते हैं, शो करते हैं वेव्स पूरे कार्डिक साइकिल की। आपने पढ़ा था ना कार्डिक की पूरा साइकिल है, हम पढ़ के आए हैं कार्डिक साइकिल डिटेल से, ठीक है, जिसमें लब ढब साउंड है और पूरा साइकिल है, साइकिल में किस तरह से हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, ये सारा मैंने आपको साइकिल डिटेल से पढ़ाया था। तो इस पूरे कार्डिक साइकिल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उन इवेंट्स को, उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हमने डिफरेंट टाइप की वेव्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी वेव्स में डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड किया इसको पी वेव में, पी आर सेगमेंट में, क्यू आर एस सेगमेंट, एस टी सेगमेंट, टी वेव और क्यू टी इंटरवल में, ठीक है। हमने क्या कर दिया उसको, जितने भी कार्डिक साइकिल से रिलेटेड इवेंट्स थे उनको हमने डिफरेंट टाइप की वेव्स में जो है वो उनको डिवाइड किया, और ईसीजी जो है उससे हमें उन सब वेव्स का जो है वो डिटेल से पता चलता है, ठीक है। वन बाय वन उन वेव्स के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ इसको समझें। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे वेव आती है वो कौन सी है, पी वेव। बेटे मैं कोशिश करूँगी कि ये जो वेव जितनी भी हम पढ़े मैं आपको पॉइंट वाइज इनको एक्सप्लेन करूँ, ताकि अगर आपका इस पे नोट आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है तो आप इजीली उसको नोट्स की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में लिख के आओ। सबसे पहले यहाँ पे जो वेव है डेट इज़ नोन एज पी वेव। पी वेव क्या चीज़ है, पी वेव क्या करती है, नंबर वन पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इट शोज बिगनिंग ऑफ आर्टियल डीपोलराइजेशन इनिशिएटेड बाय एस ए नोड। हम लोग इससे पहले एस ए नोड पढ़ के आए हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एस ए नोड पढ़ाया था। व्हाट इज एस ए नोड, याद है हमने क्या पढ़ा था, साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है ना, यानी कि जो पंपिंग ऑफ हार्ट था वो किससे इनिशिएट हो रहा था, पंपिंग ऑफ हार्ट किससे शुरू होता था बेटे, साइनो आर्ट्रियल नोड से। मैंने पढ़ाया था ना अभी आपको एस ए जिसकी एब्रीवेशन थी। तो पी वेव जो है ये हमें बिगिनिंग बताती है, हमें स्टार्ट शो करती है किस चीज़ का, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन का, जो कि एस ए नोड से स्टार्ट होती थी। नंबर टू इसका मेन फंक्शन, ये इसका मेन पॉइंट क्या हमारे पास आ जाएगा, इट काज आर्ट्रियल कंट्रैक्शन, और इसकी वजह से, इस वेव की वजह से क्या चीज़ होता है, इट काजेज, ये क्या काज करती है, आर्ट्रियल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आर्ट्रियम की जो है वो कंट्रैक्शन होगी, और इरेगुलर या एब्सेंट पी वे जो है वो इंडिकेट करेगी लैक ऑफ, एक जो रिदम था ना, पूरा हार्ट का रिदम था, कंट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का, पूरा एक हार्ट साइकिल होता था। पहले आर्टरी आपके कंट्रैक्ट करते थे और वेंट्रिकल रिलैक्स करते थे, फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते थे, तो ये एक पूरा रिदम था। लेकिन अगर हमारा पी वेव जो है वो इरेगुलर होता है या पी वेव जो है वो एब्सेंट होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका हार्ट है उसकी जो नॉर्मल रिदम थी, एक रिदमसिटी जो थी वो क्या है, वो बैलेंस नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई डिसेबिलिटी आ गई है, कोई उसमें जो है एबनॉर्मलिटी आ गई है। क्लियर हो गया। तो पी वेव अगर एब्सेंट हो या पी वेव जो है अगर इरेगुलर हो तो वो क्या इंडिकेट करेगी, वो इंडिकेट करेगी अरिथमिया, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर टू वेव की तरफ हम चलते हैं। नंबर टू हमारे पास क्या आता है, डेट इज नोन एज पी आर सेगमेंट। क्या आ रहा है, पी आर सेगमेंट। व्हाट इज पी आर सेगमेंट, it shows the completion of arterial depolarization।
पी आर सेगमेंट ये चीज़ शो करता है कि आर्टियल डीपोलराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और ये सेगमेंट टोटल कितना टाइम लेता है, 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड तक, ठीक है। और अगर पी आर सेगमेंट जो है इस जो नॉर्मल टाइम मैंने आपको बताया इस टाइम से ज़्यादा टाइम ले, तो इस ये क्या चीज़ इंडिकेट करेगा कि फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक है, देयर इज सम ब्लॉकेज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मेलिटी है। यानी कि जितने सेगमेंट्स हम पढ़ेंगे, जितनी वेव्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पूरा जो आपका टेस्ट है ईसीजी से रिलेटेड है वो सारी हम बता रहे हैं, और हर वेव में हर सेगमेंट में आपको ये बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि अगर पी वेव थी वो इरेगुलर होगी, एब्सेंट होगी, तो क्या होगा। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, अगर पी आर सेगमेंट का एक नॉर्मल टाइम है, लेकिन अगर पी आर सेगमेंट जो है इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट, इसका क्या मतलब है। तो प्रोलॉन्ग यानी कि इस नॉर्मल टाइम से अगर ज़्यादा टाइम लेता है पी आर सेगमेंट, तो ये क्या चीज़ की इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि देयर इज सम ब्लॉकेज इन हार्ट, और उस ब्लॉकेज को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। इज दैट क्लियर। थर्ड पे चलते हैं, डेट इज नोन एज क्यू आर एस। थर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू आर एस। व्हाट इज क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है। क्यू आर एस तीन चीज़ें हैं, क्यू आर एंड एस, इसलिए कंबाइनली इसको हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, क्यू आर एस कम्प्लेक्स। क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स जो है ये हमें शो करता है बिगिनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। पहले किसकी बिगिनिंग थी, आर्टियल की थी, अब किसकी होगी, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ठीक है। आर्टियल रीपोलराइजेशन आल्सो अकर। आर्टियल रीपोलराइजेशन यानी कि पहले आर्टियल पोलराइजेशन तो पी आर सेगमेंट में हो चुकी थी, लेकिन कभी कभार आर्टियल रीपोलराइजेशन जो है वो भी इस फेज में हो जाती है। और अगर क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स में कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो वो क्या चीज़ इंडिकेट करेगी, इट इंडिकेट बंडल ब्रांच ब्लॉक, यानी कि डेट इज नोन एज वेंट्रिकुलर ट्राइकाई, आप टकाइकार्डिया कहते हैं इसको, ठीक है, वर्ड इसके लिए। और ये जो वर्ड है टकाइकार्डिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फास्टर रेट ऑफ कंट्रैक्शन, यानी कि कंट्रैक्शन जो है वो बहुत उसका रेट हाई हो जाता है, बहुत इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी तरह की वेंट्रिकल से रिलेटेड जो है वो एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो, अगर क्यू आर सेगमेंट आपका प्रॉपर जो है वो फंक्शन ना करे, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएँ, तो कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, वेंट्रिकुलर एबनॉर्मेलिटीज़, और दूसरी कौन सी थी, वेंट्रिकुलर टकाइकार्डिया, ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी। इसका मतलब क्या होता है, फास्टर रेट ऑफ कंट्रैक्शन। तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स में हमने तीन यहाँ पे मेन पॉइंट्स पढ़े। पहला क्या पढ़ा, इट शोज द बिगनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है, और कभी कभार आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन भी जो है वो इस फेज में हो जाती है। थर्ड चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि अगर क्यू आर एस कम्प्लेक्स में नॉर्मेलिटीज़ हो जाए तो वो किस चीज़ की इंडिकेशन करती हैं कि देयर इज बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल उसकी क्या थी, वेंट्रिकुलर टकाइकार्डिया जो है मैंने आपको बताई, डेट इज फास्टर रेट ऑफ कंट्रैक्शन और अदर वेंट्रिकुलर एबनॉर्मेलिटीज। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, डेट इज नोन एज एस टी सेगमेंट। क्या नाम है उसका, एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट शो करता है कंप्लीशन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स की जो डीपोलराइजेशन है वो क्या हो चुकी है, वो हो चुकी है कंप्लीट। इट कैन बी डिप्रेस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेटे फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो डिक्रीज हो सकता है, और ऑक्सीजन जो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन हो रही है वो भी कम हो सकती है, और यहाँ पे एलिवेशन हो सकती है किसकी, इसकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, ठीक है। एस टी सेगमेंट में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, और ये सेगमेंट जो है इसका जो नॉर्मल टाइम है कि कितने टाइम में ये सेगमेंट कंप्लीट होता है या कितना टाइम ये सेगमेंट लेता है, डेट इज़ 0.08 सेकेंड। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एस टी सेगमेंट। मैंने आपको क्या बताया, एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट में मैंने क्या बताया कि इट शोज द कंप्लीशन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन इस सेगमेंट में आके क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इट कैन बी डिप्रेस इन, किस तरह से डिप्रेसिंग इसकी होगी कि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और दूसरा हार्ट मसल्स की जो ऑक्सीजन है उसका भी रेट क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये सेगमेंट जो है इसका जो टाइम है वो कितना है, इस सेगमेंट का टोटल 0.08 सेकेंड है। उसके बाद अगला आपका आता है टी वेव। क्या आता है, टी वेव।
कैपिटल टी जो होता है ना बेटा, टी वेव। टी वेव रिप्रेजेंट करता है बिगनिंग ऑफ रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि इस वेव में क्या हो रहा है, ये जो वेव आपको नज़र आती है, हमको ग्राफ में भी बनी हुई वेव नज़र आएगी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। और टी वेव एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं, अगर इस वेव में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो वो क्या चीज़ इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, यानी कि ये इंडिकेट करेगी कि जो पूरा इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर क्या है, एक डिस्टर्बेंस हो रही है। और हाइपर एक्यूट टी वेव, अगर आपकी जो वेव टी वेव बन रही है वो हाइपर एक्यूट है तो बेटे वो क्या शो करेगी, वो इन्फ्रेक्शन को शो करती है, डेट इज़ नोन एज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है बेटे, the hyperacute T wave shows the earliest finding of acute myocardial infarction। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस टर्मिनोलॉजी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फरेक्शन। अगर टी वेव जो है वो हाइपर एक्यूट हो तो वो आपको क्या चीज़ शो करेगी, इससे इस वेव से, यानी कि जब ईसीजी की और ये वाली आपकी वेव है, डॉक्टर जो है इस वेव को देख के क्या उनको पता चलता है, तो उनको क्या पता चलता है कि उनको फाइंडिंग पता चलती है किसकी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फरेक्शन की। अब व्हाट इज़ दिस एक्यूट मायोकार्डियल इन्फरेक्शन, इसका मतलब क्या है बेटे, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फरेक्शन जिसको आम लैंग्वेज में हार्ट अटैक भी कहा जा सकता है, कि ये क्या चीज़ है बेटे, दिस इज़ द सडन डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। इसमें क्या होता है कि हार्ट मसल्स की जो है वो सडन डेथ हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ हाइट ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो जो है वो सही तरह से नहीं होता। और यूजुअली यहाँ पे बेसिकली क्यों ब्लड का फ्लो क्यों नहीं सही तरह से हो रहा, क्योंकि देयर इज सम ब्लॉकेज, किसी भी क्रोनरी आर्टरी में क्या है, कोई ब्लॉकेज आ जाती है, वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है लैक ऑफ ब्लड फ्लो हो जाता है, ब्लड का फ्लो हार्ट को सही तरह से नहीं होता, और सडन हार्ट जो मसल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और क्या हो जाएगा, एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन इस वेव से जो है वो इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि देर इज़ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फरेक्शन। ठीक है, कि हार्ट को क्या हो रहा है कि जो है ब्लड फ्लो जो है वो लैक हो जाता है, रुक जाता है, यूजुअली ड्यू टू ब्लॉक क्रोनरी आर्टरी। ठीक है, और इसमें बेसिकली इसके जो मतलब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मैं वैसे ही आप लोगों को बता रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए, कि आर्म में पेन होती है, जॉज में पेन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, इसके अलावा स्वेटिंग होगी, और बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है वो फील होती है। ठीक है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाती है, और इसके अलावा जो है कोल्ड स्वेट आते हैं, यानी कि ठंडे पसीने आते हैं। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारी इंडिकेशन, ये सारा कुछ, ये हमें कैसे पता चलता है डॉक्टर्स को, ड्यू टू टी वेव के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी अगर आए तो ये तब जो है उनको आइडिया हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है क्यू टी इंटरवल। व्हाट इज़ क्यू टी इंटरवल? क्यू टी इंटरवल क्या है? क्यू टी इंटरवल इज़ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है और एंड होता है टी वेव में। ठीक है, ये जो इंटरवल है, मैंने क्या बताया कि इंटरवल जो है ये कब स्टार्ट होता है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ क्यू आर एस, और ख़त्म कब होता है, टी वेव पे। ठीक है, और इस पूरे इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू टी इंटरवल कहते हैं। नॉर्मल क्यू टी इंटरवल जो है ये यूजुअली इसका टाइम कितना है, यानी कि आप क्यू आर एस कम्प्लेक्स से लेकर टी वेव तक जो टाइम है वो कितना लगेगा, वो लगेगा 0.40 सेकेंड। और इन द एंड बेटे जो ईसीजी है वहाँ पे जो जितने भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं इस करंट से, वो मेजर किए जाते हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने जो है वो ईसीजी देखी होगी अपने घरों में, कॉमन एक टेस्ट है। अक्सर जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, पेशेंट्स को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपनी ईसीजी करवाएं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने पढ़ा अपना आज का टॉपिक, डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में मैंने आपको क्या बताया कि रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड बाय करंट ऑफ कार्डिक इम्पल्सेस नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मैंने आपको बताया कि जब कार्डिक इम्पल्स हार्ट की सरफेस के ऊपर से गुजरती है तो माइन्यूट इलेक्ट्रिक
करंट जनरेट होता है। ये करंट जो है बेटे ये उन टिश्यूज़ में स्प्रेड हो जाता है जिन्होंने हार्ट को सराउंड किया होता है, और इस माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हमारी पूरी बॉडी की सरफेस के ऊपर से ट्रैवल करता है। जब ईसीजी की जाती है तो यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो इस करंट से प्रोड्यूस होता है बेटे ये मेजर किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है ईसीजी में, ठीक है। और इस पर्पस के लिए क्या करते थे, मैंने आपको पहले बता दिया था कि बॉडी पे ऑपोजिट साइड ऑफ द हार्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रोड्स को फिर किसके साथ अटैच किया जाता है, एक मशीन के साथ, डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। और ईसीजी से हमें क्या हेल्प मिलती है, ईसीजी हमें हेल्प करती है टू डायग्नोज द एबनॉर्मेलिटीज़ इन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी वेव जो हैं वो पढ़ाई। पहले हमने उसमें क्या पढ़ी, हमने पढ़ी पी वेव, ठीक है। पी वेव में मैंने आपको क्या बताया कि ये बिगनिंग ऑफ आर्टियल डीपोलराइजेशन है, और ये इनिशिएट होती थी बेटे किससे, SA नोड से, ठीक है। और इसमें अगर यहाँ पे इरेगुलरिटी आए या पी वेव एब्सेंट हो तो जो हार्ट का एक बाकायदे जो उसका रिदम था वो क्या हो जाता है, वो नहीं होता। फिर हमने क्या पढ़ा, पीआर सेगमेंट पढ़ा। पीआर सेगमेंट में मैंने क्या बताया, इट शोज द कंप्लीशन ऑफ आर्टियल डीपोलराइजेशन, और इसका एक पूरा इसका एक वेव का एक टाइम था, और अगर प्रोलॉन्ग पीआर होता है तो वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को जो है इंडिकेट करता है। फिर हमने क्या पढ़ा बेटे, पीआर सेगमेंट पढ़ा। उसके बाद QRS पढ़ा। QRS में मैंने क्या बताया था कि ये शो करता है बिगनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। और इसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी अगर आ जाए तो वो इंडिकेट करती है बंडल ब्रंच ब्लॉक को, वेंट्रिकुलर जो है एबनॉर्मेलिटीज़ को जो है वो इंडिकेट करती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ST सेगमेंट पढ़े। ST सेगमेंट में मैंने क्या बताया कि ये शो करते हैं कंप्लीशन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई डिप्रेशन आ जाए, कोई डिप्रेस हो, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और ऑक्सीजन जो हार्ट को पहुंचती है वो उसका लेवल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। फिर हमने क्या पढ़े, टी वेव पढ़े। टी वेव में मैंने आपको क्या बताया कि ये बिगनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को इंडिकेट करती है, और इसकी अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो हमें अर्लीस्ट फाइंडिंग जो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो पता चल जाती हैं। इन द एंड हमने क्या पढ़ा, क्यू इंटरवल पढ़े। क्यू इंटरवल का मैंने बताया है कि क्यू इंटरवल जो है स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ QRS एंड एंड टू द एंड मतलब इसका कब होता था, टी वेव तक, ठीक है। और ये जो पूरा इंटरवल है कितनी देर का होता था, डेट इज़ 0.40 सेकेंड। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहाँ पे बिल्कुल इसी के साइड पे इसी टॉपिक पे बेटे की इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सम एबनॉर्मल बेबीज मे हैव ब्लूनेस, ठीक है, cyanosis of skin, they are called blue babies. It is due to the mixing of oxygenated and deoxygenated blood between two arteria. Mixed blood is supplied to the body of newborn babies, resulting in blueness of skin. Cyanosis result due to failure of interarterial foramen to close during development, ठीक है। Interarterial foramen is a temporary opening in the embryonic heart between right and left arteria. Normally, it is closed during development. Cyanosis may also happen due to failure of ductus arteriosus to fully constrict during development. Ductus arteriosus is a temporary channel between the embryonic pulmonary artery and aorta. Normally, it constricts during development. ये एक important information है, इसके ऊपर आप important लिखें, ये आपके पेपर में आती है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं, MCQs भी आ सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्या बताया है कि कभी कभार देर आर सम एबनॉर्मेलिटीज़, जिनको हम एबनॉर्मल बेबीज़ भी कहते हैं, यानी कि वो नॉर्मल नहीं है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई ऐसी कंडीशन है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि स्किन जो है वो ब्लू हो जाती है। हम उसे कहते हैं कि ये ब्लूनेस ऑफ स्किन हो गई है, और उस कंडीशन का नाम क्या है, साइनोसिस कहते हैं उसको। और इस तरह के बच्चों को क्या कहते हैं, ब्लू बेबीज़ कहते हैं। ये वो है जो भी बच्चे जस्ट बॉर्न होते हैं, ठीक है, उन बच्चों की बात हो रही है। और ये बच्चे ब्लू क्यों हो जाते हैं, वाई, ठीक है। ये इसका रीज़न क्या है बेटे, इट इज़ ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं
बिटवीन टू आर्टरिया, दो आर्टरिया हमने ऊपर पढ़े थे ना, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, एक में ऑक्सीजनेटेड और एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। लेकिन ये जो ब्लूनेस ऑफ बेबीज़ है, यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों ब्लड जो है मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्स ब्लड जो है वो बॉडी को सप्लाई होता है, जिसकी वजह से बॉडी का कलर जो है वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अब इसके काजेज़ क्या हैं? देयर आर टू काजेज़, ठीक है। इस ब्लूनेस जो हो रही है उनकी बॉडी की, जो ब्लड मिक्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसके दो काजेज़ होते हैं। एक होता है इंटर आर्टियल फोरामेन और एक होता है डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। ये दो इसके रीज़न है। पहले बात करते हैं हम इंटर आर्टियल फोरामेन की। साइनोसिस रिजल्ट करता है ड्यू टू फेलियर ऑफ इंटर आर्टियल फोरामेन। इंटर आर्टियल फोरामेन, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्लोज नहीं होता। डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो इसने बंद होना होता है, इसने क्लोज होना होता है, लेकिन ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटी ये क्लोज नहीं होता, बंद नहीं होता। टेम्परेरी यहाँ पे जो है ओपनिंग रहती है एम्ब्रियोनिक हार्ट में बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आर्टरी, यानी कि लेफ्ट और राइट आर्टरिया जो है इनके दरमियान में एक ओपनिंग रह जाती है और वो दोनों क्लोज नहीं होते। जब वो दोनों क्लोज नहीं होते, बेसिकली बेटे इन्होंने क्लोज होना होता है, लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम की जो ओपनिंग होती है ना, इसने क्लोज हो जाना होता है, ठीक है, बर्थ से पहले ही, डेवलपमेंट के दौरान ही। लेकिन कभी कभार ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटी वो दोनों लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया जो हैं वो क्लोज नहीं होते, जिसकी वजह से ब्लड जो हैं वो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। दूसरा मेन काज क्या है इसका, जो ब्लूनेस ऑफ स्किन है, दूसरा मेन काज है कि जो साइनोसिस है ये इसलिए भी होती है बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ डक्टस आर्ट्रियोसिस, ठीक है। डक्टस आर्ट्रियोसिस जो हैं वो फुली कंस्ट्रिक्ट नहीं होते डेवलपमेंट के दौरान, जिसकी वजह से एक टेम्परेरी जो है वो चैनल बन जाता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा के दरमियान में। यानी कि वेंट्रिकल के दरमियान जब हमने पढ़े थे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके एंड पे आपने पढ़े थे ना, एक पल्मोनरी आर्टरी थी और एक ओर्टा पढ़ा था ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि एक टेम्परेरी चैनल बन जाते हैं। वो दोनों टेम्परेरी चैनल वहाँ पे क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन अगर कंडीशन नॉर्मल हो तो बेसिकली डेवलपमेंट के दरमियान में यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ये दोनों चीज़ें मिक्सअप नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में एक टेम्परेरी चैनल बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है और आपको ब्लू बेबीज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई कन्फ्यूजन हुई तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पर अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम ब्लड वेसल स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।